from constant with temperature, it is given by One-Top's equation. तो basically One-Top's equation हमें explain करती है relation of equilibrium constant with temperature, variation of equilibrium constant with temperature. So यहाँ पे हमें direct equation लिखनी है, we need not to derive the equation. The equation is at two different temperatures, we have two different rate constants. That means ln of K2 upon K1. Now what is K2 and what is K1? K2 is equilibrium constant at temperature T2. It's equilibrium constant at temperature T2. It's equilibrium constant at temperature T2. And now what is K1? K1 is equilibrium constant at temperature T1. K1 is equilibrium constant, that's Kc, equilibrium constant at temperature T1. At temperature T1 means we have two rate constants. One is K2 and the other is K1. K2 is equilibrium constant at temperature T2. K2 will be discussed at temperature T2 and K1 is equilibrium constant at temperature T1. Basically इन दो को हमें relate करना है. So One-Top equation क्या है? That is delta H divided by 2 point delta H divided by R into 1 upon T1 minus 1 upon T2. This equation is known as One-Top equation. You need not to derive this equation. इसकी derivation आपको BSc final year में करनी है. तब तक you need not to derive this equation. ये equation आपको derive नहीं करनी है. So what is T1? T1 is the temperature. T1 is the temperature whenever rate constant is K1. And T2 is the temperature whenever rate constant is K2. Now this is One-Top equation. तो इस equation में हम relate करते हैं rate constant को. We are relating this equilibrium constant को. We are relating this equilibrium constant with temperature T1 and T2. These two are different temperatures, T1 and T2. यहाँ पे T2 आपका final temperature है, मतलब T2 is greater than that of T1. T2 is greater than that of T1. इसका हम अभी application भी देखेंगे. What does this mean? T2 is greater than that of T1. So अगर मैं इस equation का log लूं, if I take log of this equation, log to the base 10, तो मैंने कहा था जब भी आपको ln को convert करना होगा log में, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको multiply करना है. You have to multiply it, then you have to multiply it by 2.303. 2.303. If you have to convert ln into log, you have to multiply it by 2.303. Then you have to multiply this side by 2.303. तो आप एक्चुअली यहाँ से भी मल्टीप्लाई करो, यहाँ से भी मल्टीप्लाई करो. उसको सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट आपको लॉग फॉर्म दूंगा. Therefore, I can have log to the base 10 K2 upon K1 will be equal to del H divided by 2.303 R 2.303 R into 1 upon T2 minus 1 upon T1 minus 1 upon T2. तो बेसिकली इस कंसेप्ट से आपके एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं पूछी जाएगी. प्रॉब्लम विल नॉट बी आस्क्ड फ्रॉम दिस कंसेप्ट इन योर एग्जाम, बट बेसिक क्वेश्चन जो है राइज होते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं. या डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स One-Top इक्वेशन, which of the following represents One-Top equation. So this is your One-Top equation, this is also your One-Top equation. This is ln form, ln form, and this is converted to the log base 10. तो यहाँ पे हम अपना सारा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. यहाँ पे हम अपना सारा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. उससे पहले हम assumptions लेंगे. What are the assumptions in this equation? तो हमें assumption कौन सी मान के लेके चलने हैं. So the first assumption is delta H should be constant. In this equation, delta H is taken to be constant. Delta H is taken to be constant. One-Top took this delta H to be constant. In enthalpy change for this reaction, it is taken to have a particular constant value. Similarly, जो यहाँ पे T2 है, it should be greater than that of T1. This is condition number second. और condition number third जो है, One-Top equation is applicable at low temperatures. It is applicable. It's applicable when there are applicable at low temperatures. मतलब ज्यादा टेम्परेचर 3000 केल्विन 4000 केल्विन
उस पे वन टॉप इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है, इट्स एप्लीकेबल टू एट लो टेम्परेचर्स, इट्स एप्लीकेबल एट लो टेम्परेचर्स। तो बेसिकली यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है, what are the assumptions of one top equation? Now these are the assumptions of one top equation. These are the assumptions of one top equation. Delta H is taken to be constant. Temperature T2 is greater to be than that of temperature T1 and applicable at low temperatures. It's applicable at low temperatures. अच्छा, what is the applicability of this equation? हम ये equation क्यों डिस्कस करते हैं? What is the application? तो इस equation की application क्या है? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस इक्वेशन? हम इस इक्वेशन को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो इस इक्वेशन की एप्लीकेशन ये है, ये इक्वेशन हमें बताएगा फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस डेल्टा एच इज पॉजिटिव। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स फेवर होंगे या रिएक्टेंट्स फेवर होंगे। मतलब बेसिकली दिस इक्वेशन विल लेड टू अस न्यू कांसेप्ट जो हमें डिस्कस करना है नेक्स्ट लेक्चर में, दैट्स ली-चैटलियर प्रिंसिपल। तो डिस्कस करते हैं कैसे वहां तक ये ले जाएगा, तो डिस्कस करते हैं ये कैसे वहां तक हमें ले जाएगा। सो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, दिस इज वन टॉप इक्वेशन, log T2 upon T1 is equal to del H divided by 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2। तो लेट अस डिस्कस दिस थिंग, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे विद द लॉजिक। इसमें लॉजिक ज्यादा लगाना पड़ेगा आप लोगों को, इसमें ज्यादा लॉजिक लगाना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ से हम क्लियर करेंगे इसको, विल स्टार्ट। तो हमारे पास वन टॉप इक्वेशन क्या है, log to the base 10 equilibrium constant K2 upon equilibrium constant K1। What is K2? K2 is equilibrium constant when temperature is T2, delta is divided by 2.303 R, 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इसको फॉर एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, बताओ मुझे एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच का साइन क्या होना चाहिए? फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस डेल्टा एच का साइन क्या होना चाहिए? डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0। अरे यार क्या बोलते हो जुबैर? फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको टेम्परेचर देना है, डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन 0। Delta H should be greater than 0. That's how you missed the classes in thermodynamics. So delta H पॉजिटिव होना चाहिए, it should be greater than 0. For endothermic reactions delta H पॉजिटिव होना चाहिए, it should be greater than 0. और एक हमने assumption ली थी T2 should be greater than that of T1। तो इस इक्वेशन में ये सब सब्स्टिट्यूट करके हम देखेंगे what will happen to this equation। इस इक्वेशन में ये सब सब्स्टिट्यूट करके हम देखेंगे what will happen to this equation। तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई करो, log of K2 divided by K1 is equal to delta H greater than 0। Let us take this delta H 20, हम 20 मान के लेते हैं, plus 20 because it is greater than 0। मैंने लिया यहाँ पे plus 20, you can take plus 2 plus 3 plus 1 कुछ भी ले सकते हो, divided by 2.303 R into 1 upon T1। तो T1 और T2 को यहाँ पे ले लो, T1 should be less, तो यहाँ पे let us take T1 is equal to 10 and T2 is equal to 20, so that हमें हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई एम टेकिंग दिस, तो आपके पास T1 10 है, आई राइट 1 डिवाइड बाय 10 माइनस 1 डिवाइड बाय 20। तो इस चीज को अगर आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 20 डिवाइड बाय 2.303 और R का वैल्यू 8.314 into 1 divided by 21 20 minus 10 that is 10 divided by 200। बेसिकली मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो ये ओवरऑल वैल्यू होगा दिस विल कम आउट टू बी पॉजिटिव। मतलब फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस log of K2 upon K1 comes out to be positive। log of K2 upon K1 comes out to be positive। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? log of K2 upon K1 comes out to be positive for endothermic reaction। Equilibrium constant at temperature T2 and equilibrium constant at temperature T1 that comes out to be positive for endothermic reactions। For endothermic reactions it comes out to be positive। Very good। So this comes out to be positive, this comes out to be positive। तो यहाँ पे मैं सम अप करूंगा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए मैं यहाँ पे सम अप करूंगा।
एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए नंबर फर्स्ट केस हमारे पास क्या आएगा? नंबर फर्स्ट डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0। नंबर सेकंड हमारा क्या आ गया? लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 इट इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे log ऑफ K2 अपॉन K1 इज ग्रेटर देन 0। दिस मीन्स दैट क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? log ऑफ K2 is greater than that of log of K1. Log of K2 is greater than that of log of K1, or simply I can write K2 is greater than that of K1. Therefore, I'll write, or number third, K2 is greater than that of K1. K2 is the equilibrium constant at higher temperature, that is T2. It is greater than that of T1. So these are the assumptions, these are the things that we get from one top equation. These are the things that we get from one top equation से हमें ये चीजें मिलती है. Delta H is greater than 0 for endothermic reaction. If delta H is 0, this whole term on the right hand side becomes positive. अगर ये term positive बनता है, then log of K2 upon K1 is equal to positive. So मैं इसको यहाँ पे solve कर सकता हूँ. I can write log of K2 is greater than that of log of K1, or K2 is greater than that of K1. Therefore, for endothermic reactions, K2 equilibrium constant at high temperature is greater than that of K1. ना इसका मतलब क्या है? इसको अगर लॉजिकली हम देख सकेंगे तो इसका मतलब ये है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज सॉलिड, इट डिसोसिएट्स तो ना लेट मी टेक ओनली गैसियस स्पीशीज फर्स्ट। लेट मी टेक, मेरे पास नाइट्रोजन है प्लस 3 टाइम्स हाइड्रोजन है, दिस गिव्स मी 2 टाइम्स अमोनिया। तो इस रिएक्शन के लिए अगर आपको Kc लिखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्विलिब्रियम लिखना है, यू कैन राइट अमोनिया रेज्ड टू पावर 2 मीन्स प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन रेज्ड टू पावर स्टोइकियोमेट्री डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन into concentration of hydrogen raised to power 3 into concentration of hydrogen raised to power 3। ना अगर आप टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज करते हो, अगर आप इस रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, दिस एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, लेट अस टेक डेल्टा एच पॉजिटिव। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो व्हाट विल हैपन? मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्मड। इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर, मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्मड। इंक्रीज टेम्परेचर मतलब अगर आपका T2 ज्यादा है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्मड। देयरफॉर K इक्विलिब्रियम विल फेवर प्रोडक्ट्स। K इक्विलिब्रियम विल फेवर प्रोडक्ट्स। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिखेंगे, हम यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिखेंगे, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। So see the utility of this equation, how this equation is important. ऐसे डायरेक्ट आपको टेक्स्ट से नहीं पढ़ना है, दिस इज इक्वेशन, दिस इज वन टॉप नहीं, ये इसके कंक्लूजन्स हैं, दीज आर द कंक्लूजन्स ऑफ वन टॉप इक्वेशन। तो हम यहाँ पे नोट करके लिखेंगे फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। For endothermic reactions, now what happens for endothermic reactions, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो व्हाट हैपन्स? इंक्रीज टेम्परेचर विल फेवर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, will favor product formation, will favor product formation, increase in temperature will favor product formation। ये बात आप याद रखना, नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें यही डिस्कस होना है। तो बेसिकली ली चैटलियर प्रिंसिपल जो हमें डिस्कस करना है वो यहाँ से उसका मैथमेटिकल कंक्लूजन आया, बैकग्राउंड यहाँ से आया। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा मेरे पास कोई रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, it dissociates to give calcium oxide plus it gives carbon dioxide, delta H for this reaction is positive। तो delta H positive means reaction is endothermic। तो आपको बताना है अगर at high temperature ये रिएक्शन किस साइड जाएगी? at high temperature which side is favored, reactant side or product side? Now tell me, at high temperature which side is favored? रिएक्शन विल प्रोसीड टू व्हाट डायरेक्शन? एट हाई टेम्परेचर रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड में? वेरी गुड, एट हाई टेम्परेचर रिएक्शन किस साइड में जाएगी?
किस डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में? मुझे बता। एट हाई टेम्परेचर रिएक्शन, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड, प्रोडक्ट साइड, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो रिएक्शन प्रोडक्ट साइड में जाएगी, तो ये जो हमारी रिएक्शन है इट विल फेवर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स विल बी फेवर, प्रोडक्ट्स विल बी फेवर। तो ये बात आपको याद रखनी है, products will be favored or products are favored whenever we have endothermic reaction। जब भी आपका डेल्टा H पॉजिटिव होगा तो उस रिएक्शन में ऑलवेज प्रोडक्ट्स विल बी फेवर्ड, द रिएक्शन विल फेवर प्रोडक्ट्स। तो ये बात आपको याद रखनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम इसका डिस्कस करेंगे व्हेन रिवर्स इज द केस, केस नंबर सेकंड को डिस्कस करेंगे। केस नंबर सेकंड को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपका जो वन टॉप इक्वेशन है, अगर आपके वन टॉप इक्वेशन में डेल्टा एच नेगेटिव होगा, अगर आपके वन टॉप इक्वेशन में डेल्टा एच नेगेटिव होगा, तो वन टॉप इक्वेशन बेसिकली क्या है, लॉग ऑफ K2 अपॉन K1, K2 इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू डेल एच डिवाइडेड बाय 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो बेसिकली अगर आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, नाउ व्हाट इज द साइन ऑफ डेल एच फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट इज द साइन ऑफ डेल एच फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन? वेरी गुड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल एच का साइन क्या होता है, व्हाट इज द साइन ऑफ डेल एच फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन? वेरी नाइस, नेगेटिव, वेरी नाइस महक, नाहिदा, सोहेल, वेरी गुड ओएस। तो डेल एच इज नेगेटिव, डेल एच इज नेगेटिव मीन्स ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। आप इसको वैल्यू पुट करके देख सकते हो, log ऑफ K2 अपॉन K1, यहाँ पे आपका ये नेगेटिव है, लेट अस टेक इट इज -10 अपॉन 2.303 R, R का वैल्यू 38.314 इंटू 1 अपॉन T1। फॉर एग्जाम्पल T1 को मैं यहाँ पे लेट अस टेक T1 इज इक्वल टू 1, T2 इज इक्वल टू 2, तो 1 upon 1 minus 1 upon 2, you can take anything in order to solve it। मैं यहाँ पे solve करता हूँ, 2 ones are 2 minus 1 that's 1 by 2, तो यहाँ पे -10 divided by 2.303 into 8.314 into 1 by 2 निकलेगा। So overall this value will come out to be negative, means for exothermic reaction हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, log of K2 upon K1 comes out to be negative। If log of K2 upon K1 comes out to be negative, then you can say log of K2 will be less than that of log of K1, or you can say K2 is less than that of K1, K2 is less than that of K1। तो यहाँ पे K2 less than that of K1 है in case of exothermic reaction। तो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, for exothermic reactions, for exothermic reaction our del H is negative। If del H is negative, log of K2 upon K1 is equal to negative. Therefore, log of K2 will be less than that of log of K1। Therefore, K2 will be less than that of K1। In that case, what will happen? अगर आप temperature को increase करोगे, that will favor reactant formation। Therefore, we will write here K1 अगर ज़्यादा है तो reactant favor हो जाएगी। Increase in temperature, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, I'll write over here। तो मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे I'll write this statement over here। So this is what is important, these are the logical things which are important in this case। तो यहाँ पे ये वाली बातें बहुत ज्यादा important है। So we'll write for exothermic reaction, for exothermic reaction if we increase temperature, अगर हम temperature को increase करेंगे तो क्या होगा, which side will be favored, तो reactant or product side। If we increase temperature, reactants are favored, reactants are favored, reactants are favored मतलब क्या होगा, मतलब backward reaction is favored,
reactants are favored means backward reaction is favored. Backward reaction is favored. क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? नेगेटिव, वेरी गुड. क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? Now this is the basis of what we have to study tomorrow. This is the basis of what we have to tomorrow. What we have to study tomorrow. क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? Very good, very nice, very nice. This is very, very, very good concept. तो हम लिखेंगे जो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2, इट इज लोअर एट हाई टेम्परेचर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. We can write over here the value of equilibrium constant is lower. The value of A equilibrium is lower at high temperature because T2 is equilibrium constant at temperature T2. This is equilibrium constant at temperature T1. तो हाई टेम्परेचर पे ये कम है. At high temperature it is lower at higher temperature. It is lower at high temperature in exothermic reaction. In exothermic reactions. Now this is very very important. Statement wise question आ सकता है. तो वहां पे लिख सकते हो the value of K equilibrium is higher at high temperature endothermic reaction. क्या आप वहां पे लिख सकते हो ये? क्या आप वहां पे ये वाली बात लिख सकते हो? For endothermic reactions, value of equilibrium constant is higher at high temperature. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? Have you got this concept? क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? Very nice, very nice. This was very very useful concept. तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और हम डिस्कस करेंगे. Very good, very good. तो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है. तो इस कंसेप्ट में एक्चुअली मैं सम अप करूंगा आपके नोट्स को. मेरे पास इंडोथर्मिक रिएक्शंस है एंड मेरे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है. फॉर इंडोथर्मिक रिएक्शंस del H is positive. For exothermic reactions del H is negative. Now if del H is positive then log of K2 upon K1 comes out to be positive. For exothermic reactions del H is negative then log of K2 upon K1 comes out to be negative. This is how short notes are formed. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो log of K2 is greater than that of log of K1. यहाँ पे आप लिख सकते हो log of K2 is less than that of log of K1. तो log of K2 को आप K2 भी लिख सकते हो, K2 is greater than K1. यहाँ पे लिख सकते हो K2 is less than that of K1. तो यहाँ पे K2 क्या है? It's equilibrium constant at temperature T2. This is equilibrium constant at temperature T1. This is equilibrium constant at temperature T2. This is equilibrium constant at temperature T1. और आपने assumption में देखा था T2 is greater than T1. तो बेसिकली आपको यहाँ पे पता है you know that T2 is greater than T1. You know that T2 is greater than T1. So if T2 is greater than T1, therefore equilibrium constant at higher temperature is high for endothermic reaction. The value of equilibrium constant, the value of equilibrium constant is higher at high temperature. Is equilibrium constant increases at high temperature for endothermic reactions. Means reaction will favor प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पे आपकी बैकवर्ड रिएक्शन फेवर हो जाएगी. बैकवर्ड रिएक्शन फेवर हो जाएगी. बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पे फेवर हो जाएगी. इसी चीज को हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे. विल एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पे हम दो ग्राफ्स प्लॉट करेंगे बेसिकली. One is equilibrium constant log of K. I am talking about final equilibrium constant versus temperature. तो for endothermic reaction आपने क्या देखा? Endothermic reaction में क्या होगा? Log of K versus T. तो endothermic reaction में अगर आप temperature increase करते हो तो equilibrium constant increase होता है. But logically यहाँ पे logarithm है, इसलिए graph will be like this. This is the graph for ln or log. This is log type of graph. So this is when log of K versus T it increases for endothermic reactions. तो basically यहाँ पे आपके reactants है, यहाँ पे आपके products बनते हैं. Reaction increases in the forward direction. Product formation ज्यादा होती है. This is endothermic reaction
एंड यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव है। मीन्स अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होता है। अगर आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ बनाना है, दैट इज लॉग ऑफ के वर्सेस टी आपको ग्राफ बनाना है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द ग्राफ विल बी लाइक दिस। आपका ये वाला ग्राफ आ जाएगा। यहाँ पे आपका डेल एच नेगेटिव है और यहाँ पे आपका दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या ये ग्राफ्स आपको समझ में आ गई? क्या ये ग्राफ्स आपको समझ में आ गई? नाउ सी, आप यहाँ पे कह सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, equilibrium constant decreases with increase in temperature for exothermic reactions. This is how graph can prove it. This is how graph can prove it. Have you got it now? Very good, very good, Zubair, Mahak, Maroon. Very nice, very nice. This is how you can explain it logically as well as graphically. This is how you can explain it logically as well as graphically. तो इसी इक्वेशन को, वन टॉप इक्वेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं अगर हम रिलेट करेंगे वन टॉप इक्वेशन को डेल जी से। ये इक्वेशन भी आपको याद रखनी है। डेल जी इज इक्वल टू, व्हाट इज डेल जी? डेल जी गिव्स फ्री एनर्जी। डेल जी इज इक्वल टू -2.303 आर टी log of equilibrium constant case। तो मुझे पता व्हेन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम डेल जी का, डेल जी किसके बराबर होता है एट इक्विलिब्रियम? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल जी? वेरी गुड, एट इक्विलिब्रियम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल जी? डेल जी किसके बराबर होता है इक्विलिब्रियम पे? वेरी गुड, जल्दी से, एट इक्विलिब्रियम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल जी? डेल जी किसके बराबर होता है? Come on guys, at equilibrium what is the value of del G? तो del G किसके बराबर होता है at equilibrium? It's equal to zero। thermodynamics में पढ़ा था। If this thing comes out to be zero, this thing comes out to be zero, ये वाला पार्ट आपका जीरो बन जाएगा। At equilibrium del G comes out to be zero, so ये चीज आपकी जीरो हो जाएगी। If this thing comes out to be zero, then you can say at equilibrium this del G is equal to zero। तो यहाँ पे हम इस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। इस डेल जी दैट इज फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। अगर आपने थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ी है तो आप एक बार फिर यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, उसका प्लेलिस्ट बनाया है, गिव्स फ्री एनर्जी। इसको हम स्टैंडर्ड कंडीशंस में अगर देखेंगे देन द इक्वेशन बिकम्स डेल जी। ये वाली इक्वेशन भी आपको याद रखनी है, डेल जी नॉट प्लस 2.303 आर टी plus 2.303 RT log to the base 10 QC। Now you know that what is QC? QC is reaction coefficient। तो अगर आपके पास what is delta G naught? This is standard free energy। Standard free energy। What is standard free energy? This is Gibbs free energy, standard energy at a temperature of 298 Kelvin and 1 atm, उसी को standard कहते हैं। तो at equilibrium del G किसके बराबर होता है? At equilibrium this del G will be equal to zero। तो एट इक्विलिब्रियम मैं कहता हूँ ये इक्वेशन कहाँ से आई है, इसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे। एट इक्विलिब्रियम डेल जी इज इक्वल टू जीरो, सो यू कैन राइट जीरो इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के सी। Now why I have written Kc over here? Because at equilibrium Qc becomes equal to Kc। ये बात हमने कल देखी। At equilibrium Qc becomes equal to Kc। This is standard free energy। तो अगर आप इस स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी को यहाँ लाओ, यू कैन राइट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग ऑफ के सी। दिस इज हाउ यू कैन डिराइव दिस इक्वेशन। दिस इज हाउ यू कैन डिराइव दिस इक्वेशन। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ये क्यू सी क्यों के सी बन गया? क्यू सी एंड के सी आर इक्वल एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम दिस डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो है दिस विल बिकम इक्वल टू दिस। क्या ये बात अब आपको क्लियर हो गई? क्या ये बात अब आपको क्लियर हो गई? टेल मी, ये बात आपको क्लियर हो गई? वेरी गुड, ये बात आपको क्लियर हो गई। So very good, this was the effect of temperature। In this lecture I have discussed effect of temperature on equilibrium constant of a reaction। तो यहाँ पे आपको दो बातें याद रखनी है for endothermic reaction as well as for exothermic reaction। तो मैं कहूँगा मेरे पास कोई रिएक्शन है, let the reaction is PCl3 plus Cl2 gives PCl5। डेल्टा H for this reaction is negative। तो मुझे बता, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा
रिएक्शन कौन सी साइड फेवर करेगी? रिएक्शन विल विद इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो विच साइड रिएक्शन विल प्रोसीड? मुझे बता, तो विच साइड रिएक्शन विल प्रोसीड? अरे यार डेल्टा एच नेगेटिव है। डेल्टा एच नेगेटिव का क्या मतलब है? डेल्टा एच नेगेटिव का क्या मतलब है? रिएक्शन कौन सी है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में अभी हमने देखा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड साइड में जाएगी। रिएक्शन विल फेवर बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन विल फेवर बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्टेंट्स, वेरी गुड नाहिदा, वेरी गुड ओएस, वेरी गुड आर्चबैर। रिएक्टेंट्स, रिएक्शन विल फेवर रिएक्टेंट्स। अच्छा, अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा तो रिएक्शन किस साइड जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्टेंट रिएक्शन विल फेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो बेसिकली लास्ट ईयर, एक दो ईयर से पहले एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन वाज लाइक दिस, N2 + 3 टाइम्स H2 गिव्स 2 टाइम्स अमोनिया। तो यहाँ पे लिखा था डेल्टा H इज इक्वल टू +92.3, +92.3। तो आपको बताना था फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जो है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज फेवर्ड बाय, फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज फेवर्ड बाय। तो मुझे बताओ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज फेवर्ड बाय। नंबर फर्स्ट में लिखूंगा हाई टेम्परेचर, नंबर सेकंड में लिखूंगा लो टेम्परेचर, नंबर सेकंड लिखूंगा, थर्ड लिखूंगा नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो मुझे बताओ आंसर, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाई 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 मेरे रब्बा। now see, this is what over here you have got the concept, thank you very much, बहुत ही गुड। लो टेम्परेचर कहाँ सोयल? ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच पॉजिटिव है। एक बार फिर से देखो, यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव है सोहेल साहब, डेल्टा एच पॉजिटिव है। ये वो गीत नहीं है, हाय 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 मेरे रब्बा, नहीं है ये। डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करो फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे हाई टेम्परेचर की जरूरत है। तो यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म करेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो कल प्रोबेबली क्लास 9:30 को हो सकता है, सुबह 9:30 को हो सकता है। ली चैटलियर प्रिंसिपल को कल डिस्कस करेंगे, दैट विल बी द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस, फाइनल टॉपिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, फाइनल टॉपिक, दैट इज लास्ट टॉपिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। चलो ठीक है, ओके ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विद मी। तो इस पे आप क्वेश्चन अभी नहीं करना, कल के लेक्चर के बाद करना।